So as far as output is concerned, we know that to sort n elements we require n-1 passes. Okay, तो मतलब मुझे कुछ भी हो n-1 times तो particular procedure repeat करनी ही करनी है. So definitely we require one for loop, that is for I equals to 0, I less than n-1, I plus plus. तो इसके अंदर वाला पार्ट रिपीट करते जाओ कितने टाइम्स, n-1 टाइम्स. ओके, फिर अभी क्या करना है, पास 1 में क्या करते हैं अपन, we consider two elements and we go on comparing the elements till last element. So from array of 0 to array of n-1 तक मुझे कंपैरिजन करते जाना है. So I require another for loop, okay, for a particular pass. Okay, so for j equals to 0, j less than n-1, j plus plus. ठीक है. अब now we are in the first pass when the value of I is 0 and when the value of j is 0, that is first iteration में है अपन. अभी अपन क्या करेंगे, comparing element 13 and 12, that is nothing but we are comparing element array of 0 to array of 1, that is array of 0 and array of 1. Then if array of 0 is greater than array of 1 तो क्या करेंगे, swap करेंगे. So we'll write down if, so if my array name is A, so if A of j is greater than A of j plus 1, अगर ऐसा है तो क्या करो, स्वैप करो. ठीक है, ऐसा नहीं है तो क्या छोड़ दो, सीधा j plus plus पे जाओ. Then value of j becomes 1. So we are comparing A of 1 and A of 2, that is we are considering now next pair, that is nothing but the 13 and 9. और ऐसा चलते जाएगा कब तक, लास्ट इटरेशन तक, that is nothing but the 16 and 24, 16 and 24 तक चलते जाएगा. So I get this output at the end of this for loop. फिर क्या होगा, condition of j becomes false, I plus plus. नेक्स्ट पास में अपन क्या कर रहे थे, okay, so in the past 2 we are comparing 12 and 9. So we are again repeating the same procedure, but here difference is that here number of iterations is 4. अगले वाले जो फर्स्ट पास था ना, वहां पे नंबर ऑफ इटरेशन थे 5. here iterations are 5, here number of iterations are 4. क्यों, क्योंकि अपन ने लास्ट एलिमेंट को कंपेयर ही नहीं किया. so at every pass when the value of I increase by 1, so in the next pass मुझे ये लूप एक बार कम एग्जीक्यूट करना है. so I will write down j equals to j less than n-1 minus I. so when it is the first pass, this loop will goes for j equals to j less than n-1, because that time value of I is equals to 0. in the next pass I increase by 1, when the value of I equals to 1, this will goes for j equals to j less than n-2, फिर n-3, n-4, क्योंकि हर पास में नंबर ऑफ इटरेशन कम होते जा रहे हैं. कितने बार कम हो रहे हैं, I टाइम्स कम होते जा रहे हैं. सो दिस इज योर लॉजिक बिहाइंड द कोड. ओके, नाउ लेट्स सी द कोड नाउ. So this is the function for bubble sort. Here we are taking array as an input and n is nothing but the size of that array. So we require ij for looping purpose, variable temp for swapping, वो अपन पढ़ चुके हैं swapping का logic. Okay, so first for loop I equals 0, that is for number of passes. So we are declaring this is pass I plus 1, क्योंकि pass 0 नहीं होती, कभी pass 1 होती है, though when the value of I is 0. So we are declaring this is pass 1. Second for loop j equals to j less than n-1 minus I. बहुत बार बच्चे n-I लिखते नहीं है, नहीं भी लिखा ना तो भी तुम्हारा कोड एग्जीक्यूट होगा ही, लेकिन कंपैरिजंस ज्यादा होंगे. और एल्गोरिथम क्या कहता है, at the end of first pass largest element reaches to the last position. फिर सेकंड पास में तुम लार्जेस्ट एलिमेंट को क्यों कंपेयर करते हो जब तुम्हें पता है कि ही इज द लार्जेस्ट. सो दिस फॉर लूप, यस पास में अपन वी आर डिक्लेयरिंग दिस इज इटरेशन j+1 and we are comparing this element, and if this element is greater than this one, see the same logic. Okay, then we perform the swapping of that element. This is the code for swapping. नहीं पता है तो अच्छी तरह से वीडियो पॉज करके देख लो. Okay, after performing swapping we are just displaying the element, that is after swapping elements is like this. Okay, then now again j++, compare next two elements. फिर से अगर बड़ा है तो स्वैप करो, नहीं है तो छोड़ दो, लेकिन आउटपुट डिस्प्ले करते जाना है हर इटरेशन का. ओके, देन ये लूप j++ at the end, this loop will end. ओके, और ये लूप के बाद क्या होगा,
this one and I plus plus. Value of I increase by 1. Again condition true. Again j initializes to 0. This loop will go for n minus 1 minus I times. So in this way the elements are in sorted order. Okay, so n minus 1 passes complete होंगे. So जब I का loop खत्म होगा तो क्या होगा? Okay, so elements are in sorted, so we'll display the sorted element. Okay, so output अपन पहले ही देख चुके हैं. So this is the code for sorting the n elements using bubble sort. So now we have understood the code for bubble sort. That is nothing but the bubble sort implementation in the nice way. Nice way इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आउटपुट देखते वक्त हमने एटमोस्ट केयर किया कि मेरा जो यूजर है, दैट मीन्स आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, और यही केयर तुम्हें करना है when you are going to show the code for bubble sort to someone else. That someone else is important because for us you are important, for you that examiner, that your interviewer is important. वो impress होना चाहिए. Okay, तो कोड इसी तरह से लिखना. बहुत बच्चे कोड ऐसा लिखते हैं फर्स्ट एरे एंड देन आफ्टर सॉर्टिंग दिस इज एरे. इसमें मजा नहीं है. बबल सॉर्ट शो करना है, सॉर्टिंग नहीं शो करना है. So display the output after every pass, display the output after every iteration. Your interviewer या फिर एग्जामिनर इंप्रेस होना ही चाहिए. आपको 50 में से उसने 45 के ऊपर ही मार्क्स देना चाहिए. डन. और 45 के ऊपर के मार्क्स के लिए वो तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा. वो पूछेगा व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बबल सॉर्ट. नॉर्मल बच्चे कॉम्प्लेक्सिटी याद कर लेते हैं. नॉर्मल मतलब थोड़े अबव एवरेज बच्चे कॉम्प्लेक्सिटी याद कर लेते हैं. नॉर्मल बच्चे नहीं करते क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी में जाते ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा नहीं जाता है अच्छी तरह से. ओके, बट वी आर विथ इंजीनियरिंग टूल्स, तो अपन ये भी देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है वर्स्ट केस में, लेकिन क्यों है. अब अपने को लॉजिक पता है. लॉजिक में क्या लिखा है? दिस लूप विल गो फॉर n minus 1 टाइम, सो डेफिनेटली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा n minus 1. दिस लूप इज गोस फॉर n minus 1 टाइम. दिस इज इनसाइड दिस फॉर लूप. Okay, but for this for loop will execute definitely for n minus 1 time. अब I का वैल्यू एक एक से बढ़ते जा रहा है और इस लूप का कम टाइम एग्जीक्यूट होते जा रहा है. But for worst case we need to take its maximum. So j less than n minus 1 minus I. Maximum time कब होगा? When value of I is 0. So definitely this loop is again goes for n minus 1 time. We know that. So maximum time complexity will be n minus 1 into n minus 1. Okay. So this will be n minus 1 whole square. This will be n square minus 2n plus 1. Okay, इतना भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि we know that क्या complexity of any algorithm is nothing but degree of that polynomial. Degree of polynomial कितना है? 2. So इसका complexity आएगा degree of n square. So that's why algorithm तुम्हारे एग्जामिनर को या फिर इंटरव्यूअर को तुम ऐसे बताओ कि because of this the complexity of bubble sort is n square. Definitely he will impress. But we know that base case time complexity of bubble sort is big O of n. Okay, कैसे? base case time complexity कब रहेगा किसी भी sorting टेक्निक का? वो तब रहेगा जब एलिमेंट्स पहले से ही सॉर्टेड हो. ओके, लेकिन अगर एलिमेंट पहले से ही सॉर्टेड है, लेट्स से, बट अगेन दिस लूप इज गोस फॉर n minus 1 टाइम. This loop is going for n minus 1 time by itself, and because of this again is n minus 1 into n minus 1. Okay. So base case time complexity big of n आता कैसे है? Okay. If we can check the output, here all the elements are in sorted order, but still there are 4 elements. How many passes are there? पहले इसमें उसने सारे elements को compare किया, फिर second pass, फिर third pass. So for 4 elements we are having 3 passes. So again, though elements are in sorted order, still we are getting time complexity is n square. ऐसे नहीं आना चाहिए था. अब ऐसे नहीं आना चाहिए इसलिए मुझे कोड में थोड़े मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे. वो क्या? So let's check. Now, अगर फर्स्ट पास के बाद मुझे पता चल गया कि सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड में है, तो मुझे नेक्स्ट पास एग्जीक्यूट ही नहीं करना है. अगेन आई रिपीट, अगर फर्स्ट पास के एट द एंड या फिर किसी भी पास के एट द एंड मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे अभी स्वैपिंग नहीं हो रहा है. स्वैपिंग नहीं हो रहा मतलब क्या? एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर. ओके, क्योंकि अपन स्वैप कब करते थे? व्हेन द फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड वन. अब स्वैपिंग ही नहीं हो रहा है मतलब एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर, और तब मुझे उस पास से बाहर आना है. डन.
सो और पास से दैट इज पर्टिकुलर लूप से बाहर आने के लिए वी नो द अनकंडीशनल कंट्रोल स्ट्रक्चर जो अपन इससे पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज नथिंग बट द ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब लूप से बाहर आना है, सो आई नीड टू यूज द ब्रेक स्टेटमेंट। सो वी रिक्वायर्ड वन swap variable to count the number of swapping. So initially when we are in the first pass, okay, or we are in the any pass, we first initialize swap equals to 0, okay, and then when a swapping is performed, then we increase the value of swap by 1, that is nothing but a swap equals to 1 को अपन सेट कर देंगे। okay, so swap equals to 1 कब होगा, जब स्वैपिंग परफॉर्म होगा। स्वैपिंग परफॉर्म हुआ ही नहीं तो स्वैप का वैल्यू क्या रहेगा, 0, और स्वैपिंग का वैल्यू 0, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर। सो विल राइट डाउन इफ स्वैप इक्वल्स टू 0 ब्रेक। ब्रेक बोलते से क्या, लूप से बाहर। तो लूप से बाहर क्या है, एलिमेंट्स आर इन एरे। सो इन द कोड, सो आई नीड टू राइट डाउन द ब्रेक आफ्टर दिस फॉर लूप। यहां पे मैं लिख देता हूं ब्रेक। ओके, नाउ यहां पे ही ब्रेक लिखना, दैट इज ब्रेक इज फॉर दिस पर्टिकुलर फॉर लूप। इस फॉर लूप के लिए ब्रेक नहीं है। अगर मैं ब्रेक यहाँ पे लिखता था ना तो क्या होता था, फर्स्ट पहली ही पेयर कंसीडर होती थी एंड इट विल कम आउट ऑफ द लूप। अगर पहले ही इसमें सॉर्टेड नहीं होता, दैट इज इफ द एरे इज लाइक दिस, दैट इज 12 13 एंड देन 9 4 2 21। ओके, सो फर्स्ट पेयर इज सॉर्टेड, इट विल एक्सिक्यूट द ब्रेक इफ ब्रेक इज इनसाइड दिस फॉर लूप, बट आई वांट ब्रेक इनसाइड दिस फॉर लूप। फर्स्ट ऑफ ऑल सारा चेक करो, कहीं पे भी सॉर्टिंग नहीं हो रहा है, फिर ब्रेक एग्जीक्यूट करो। Now अगर ब्रेक एग्जीक्यूट होता है, now consider the elements are in sorted order, एलिमेंट्स है अभी sorted order में। डन। अब क्या होगा, i equals to 0, then ये पर्टिकुलर लूप कंप्लीट होगा जिसमें सब कंपेयर स्वैपिंग परफॉर्म होगा, लेकिन स्वैपिंग होगा ही नहीं क्योंकि एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर। सो एग्जीक्यूट होगा ब्रेक। ब्रेक बोलते से इस लूप के बाहर, ओके, दैट इज पर्टिकुलर दिस लूप के बाहर। सो दिस लूप एग्जीक्यूटेड फॉर वन टाइम, this loop executed for n minus 1 time. So total complexity is n minus 1 into 1, that is n minus 1, and we know the complexity is nothing but the degree of that polynomial. So degree is n. So that's why best case time complexity for bubble sort is big O of n and worst case time complexity is big O of n square. अब ऐसा एक्सप्लेनेशन तुम दोगे ना तो एक गजब का है, या तुम्हारा इंटरव्यूअर एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा, या फिर कोई भी तुम्हारा क्लासमेट रहने दो, इट विल इंप्रेस लाइक एनीथिंग कि बच्चे में दम है। ओके, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ बबल सॉर्ट। सो बिग ऑफ एन कब आएगा, बेस्ट केस। बेस्ट केस कब होगा, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर इन सॉर्टेड ऑर्डर। ये फर्स्ट सॉर्टिंग टेक्निक है, इसलिए बहुत बार रिपीट करके अच्छी तरह से बता रहा है। एंड वर्स्ट केस कब आएगा, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर इन अनसॉर्टेड ऑर्डर, दैट इज नथिंग बट द एलिमेंट्स आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्योंकि अगर एलिमेंट डिसेंडिंग है तभी तुम्हारा ये बिग ऑफ एन स्क्वायर आएगा, अदरवाइज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इन बिटवीन दिस टू, कि कुछ एलिमेंट सॉर्टेड है कुछ एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, सो इन बिटवीन दिस टू। बट असेंडिंग ऑर्डर बेस्ट केस बिग ऑफ एन, डिसेंडिंग ऑर्डर वर्स्ट केस बिग ऑफ एन स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड एज द एनालिसिस ऑफ एन एल्गोरिथम। इस तरह से एनालिसिस करो, इस तरह से एक्सप्लेन करो और फिर मजा देखना। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर लाइक है तो काइंडली रेट आवर कोर्स एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स यूज डिस्कशन सेक्शन, एनी सजेशन काइंडली रीच अस at letstalk@engineeringtubes.com. So thanks for joining Engineering Tubes, where engineering made easy.